Assalamu alaikum. My name is Wakarul Hassan Abbasi and I am the student of Arid Agriculture University of Rawalpindi and the 7th semester of agronomy. So today my topic is crop productivity in natural ecological system. First of all, we will discuss what is crop productivity. Crop productivity is the quantitative measurement of crop yield in given measured area of field. The use of new crop varieties and the efficient application of agrochemical immensely contribute to increase plant productivity. And next is the natural ecological system. Natural ecological system occur naturally and can survive without any intervention from human beings. Agriculture participants have impact on wide range of ecosystems including water quality, pollination, nutrient cycling, soil retention, carbon sequestration, and biodiversity conservation. Natural ecological systems include the forest, grassland, desert, and aquatic ecosystem. First of all, we will discuss crop productivity in desert ecosystem. Desert ecosystem is typically characterized by the extreme having the lowest biomass, lowest primary productivities, and the lowest participation input. Crop productivity in desert are usually medium. Usually, the bearing crops are used to grow in the desert, which need less water availability and the nutrients and temperature bearing. Nutrients usually limited desert productivity during periods when water is available. Low external nutrients inputs result in decomposition by the both abiotic and biotic process, playing a major role in nutrients availability. Other biotic mediated processes such as microbial nutrients fixation and fungal roots associated are the critical to maintaining favorable nutrient balance in the desert plant. The crop like onion, garlic, spinach, and the mustard are grown in the desert, which have highly productivity because they can bear the desert environment. Second one is grassland ecosystem. Ecosystem in which grass or grass-like plants such as sedge and rush grasses ecosystem is dominated the vegetation and turn grassland. Grassland occur on every continent except Antarctica. It is estimated the grassland once covered as much as 25 to 40% of Earth land and surface. Much of it has been plowed and converted to the crop productivity such as corn, wheat, and soybean. Crop productivity in the grassland ecosystem higher than the other biomass. The plant absorbs highly nutrients and the sufficient water required for the proper growth of crop. And the plant growth in grassland ecosystem is higher than the other biomass. And the next one is grassland are area which are vegetation and dominated by the grass. Grasses land cover around 40% of the earth's surface and they exist in both temperate and tropical region. Grass domination temperature grassland are rarely found in the grassland area. There are many specific of grasses that live in the biomass including purple nettle grass, wild oat, foxtail, and ryegrass and buffalo grass. Forests provide the crop huge area and also the sufficient minerals, nutrients, and the water supply. Indirectly, the result increase in the crop productivity. Forest and trees make an essential contributor to the food security by helping to maintain the environment condition need for agriculture production. They stabilize the soil, prevent erosion, enhance in the land capacity to store water and moderate air in and soil. In मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताना चाहता हूँ कि जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है हम उसको कैसे मेजर करते हैं। वो स्पेसिफिक किसी भी लैंड या एरिया में अगर हम उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया में अगर हम इस चीज़ को मेजर करेंगे तो तब एक्यूरेसी हमारे पास आएगी कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी इस एरिया में कितनी हुई और कितनी नहीं हुई। इसको हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और बेसिकली उसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स मैटर करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे उस एरिया में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी किस तरह थी, इन्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी किस तरह थी, और उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी कैसी थी, सॉइल कंडीशंस कैसी थी। मींस काफ़ी चीज़ ये फैक्टर्स हैं जिनको हम देख के उस हिसाब से हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितनी हम इससे यील्ड हासिल कर सकते हैं और कितनी एवरेज ले सकते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। बेसिकली इकोलॉजिकल सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो खुद ब खुद एक सर्कल होता है जो एक एक्यूरेसी पे चल रहा है, जिस पे वो वेदर्स की चेंजिंग टेम्परेचर,
कूल डाउन, हॉट डाउन, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं बेसिकली कि बारिश का आना, मतलब उसके अलावा टेम्परेचर सुबह क्या है, शाम को क्या है। ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जो जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। हाँ, बेसिकली इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसके इन्वायरमेंट को कूल डाउन करने के लिए जैसे ट्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। अगर ट्रीज़ हैं तो एक इन्वायरमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, और इन्हीं बेसिस पे हम अपनी प्रोडक्शंस को ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा हम फिर उसके साथ अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम, तो हम उसको पहले स्टडी करेंगे कि बेसिकली इनमें क्या टेम्परेचर है, क्या चीज़ें हैं, कितना हाई है, कितना लो है। काफ़ी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। उस हिसाब से फिर हमें अपनी या तो वैराइटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी कि हम कौन सी वैराइटीज़ को इधर डेवलप करें जो इस टेम्परेचर में या इस एरिया में इजीली सर्वाइव कर जाए और अच्छी प्रोडक्शन दे जाए। हमें इस तरह के सीड डेवलप करने पड़ेंगे। और न्यूट्रिएंट अगर सपोज उस एरिया में सॉइल में इशू है तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को हमें करना चाहिए ताकि हम उसी इकोसिस्टम के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। उसी के हिसाब से हमें अपनी फसल को काश्त करना चाहिए। और उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज भी आ जाते हैं जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि डेज़र्ट है, डेज़र्ट इकोसिस्टम आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाता है। डेज़र्ट बेसिकली वो इकोसिस्टम है जो उसके ऊपर वो वैराइटीज़ डेवलप मोस्टली करेंगे जिनके ऊपर लेस वाटर रिक्वायर्ड है। सपोज जैसे रेनफेड एरियाज़ में कुछ वैराइटीज़ होती हैं इसी टाइप की, हम देखा जाए तो। और ग्रासलैंड में बेसिकली इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ आ जाती हैं कि जो ग्रासलैंड को जैसे कि अगर हम आजकल फॉडर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट कैटेगरीज़ की हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें जो हम इस हिसाब से अब यहाँ पर देखें कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम तकरीबन 25 to 40% ऑफ अर्थ हैज़ लैंडेड कवर्ड, कि हमारा 25 से 40% जो एरिया है लैंड का, अर्थ का, वो कवर है ग्रासलैंड के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारे बायोमास पे, हमारे इकोसिस्टम पे। अगर ग्रासेस हैं तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी इजीली हो जाती है सॉइल में, और उसके अलावा हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और वेदर्स भी अच्छे रहते हैं। ज़्यादा हॉट टेम्परेचर नहीं होता ड्यू टू इन ग्रासलैंड। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं ताकि इकोसिस्टम फ्रेंडली हो हमारे लिए। जब इकोसिस्टम हमारे लिए फ्रेंडली होगा तो हमारी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी। बट उन सेंस कि हमें वैराइटीज़ भी ही डेवलप करनी पड़ेंगी जो सेम लाइक उन इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकें। अगर हम वैसे वैराइटीज़ नहीं डेवलप करेंगे तो जितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा हमारी प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो सो हमें फूड की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम फूड की अवेलेबिलिटी को पूरा कर सकें, अपनी वैराइटीज़ को अच्छा डेवलप करें, अच्छी प्रोडक्शन हासिल करें और अपना इन्वायरमेंट को भी फ्रेंडली रख सकें। तो हमें उस टाइप की वैराइटीज़ डेवलप करनी चाहिए। और उसके अलावा देखिए ना, नेचुरल इकोलॉजिकल, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये नेचुरली होता है। और ये खुद ब खुद अपना एक सर्कल होता है जो एक सीक्वेंस से ही चलता है, जिसमें इंसान बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ हद तक सिंपल सा रोल अदा कर सकता है उसको फ्रेंडली बनाने के लिए। फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने चाहिए, ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को फ्रेंडली कर सकें। सो दिस इज़ माई टॉपिक एंड माई प्रेजेंटेशन इज़ एंड। सो वेरी थैंकफुल। और हमें अपनी सॉइल में लास्ट वन थिंग इज़ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप्स, सो वी कैन इम्प्रूव आवर सॉइल्स टू ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।